This is Alisha Moorthia and I welcome you all back to my YouTube channel Haksenari. Recently, Haksenari has reached to 1000 subscribers, and for that I would like to thank each one of you for all the love and support that you have given to the channel. For the completion of 1000 subscribers and 1 year of Haksenari, I will be making a separate new video, but of course after exams. But for today, ladies and gentlemen, I have brought one more inspiring video for you all. जैसे कि आपको पता है कि आज जून 5 है, which is also World Environment Day. और World Environment Day 2021 का थीम है Restoration of Ecosystem. And you know what? How can we restore ecosystem? There are many ways, and one of the ways is by planting trees. So आज के वीडियो में हम फीचर करने जा रहे हैं मिस प्रियंका गुप्ता को, जिन्होंने अपना खुद का एक होम गार्डन बनाया है, which is a very beautiful thing and I've personally witnessed it. So आज के वीडियो में प्रियंका हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएगी और बताएंगी कि what are some tips and tricks that we should keep in our mind while making our own home garden. So let's see what she has in the bucket of her knowledge. I am Priyanka and I am here to share with you all my small initiative which I have taken few months back, that is of home gardening. जैसे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो अलीशा दी ने बोला मैं आप सभी को अपना होम गार्डन दिखाऊं। होम गार्डनिंग के एंडलेस बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, पेशेंस पावर को एनहेंस करता है और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखता है, ग्रीनरी रहती है और हमारे माइंड को भी पीस मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं, कुछ प्लांट्स लगाएं ज़रूर। थैंक यू। लेट्स गेट। Number 1, our garden should consist of every kind of plants. Maybe it is our cultural plants, green vegetables, herbs, some creepers, flowering plants, or there should be some decorative plants. Number 2, the green shade is necessary for some plants. Number 3, the pots must have a drainage hole. Number 4, the tools are cleaned. If we are not having a jet spray, we can use a water bottle by making holes on its cap. The DIY planter, we can use matka, and for green shade we can use a sari. Any of the seeds, you have to take half of garden soil and half of organic compost. Mix it well. Use a disposal glass if you are not having seedling tray. Make sure आपने यहाँ पे holes कर दिए हों. Now fill it. I have taken a red chili from our household. I'll take few seeds and sprinkle them up like this. Now I'll put some potting mixture on it. In our Indian culture, Tulsi is there in everybody's house because we worship Tulsi. Besides this, Tulsi is rich in vitamin C and have antioxidants, and it has medicinal properties too. And people used to add some leaves in their daily tea.
केले के प्लांट की भी पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। केले के काफ़ी सारे पेड़ हमें फ्रूटिंग भी देते हैं और काफ़ी जगह इनकी लीव्स में फूड भी सर्व होता है, मेनली साउथ इंडिया के साइड। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा लकी प्लांट माना जाता है। ये एयर को प्योरीफाई करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और एंटी रेडिएटर की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा इसको ज़्यादा केयरिंग की नीड नहीं होती। इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी, वाटर में भी। इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये है बेलपत्र, जिसको महादेव को चढ़ाया जाता है। और इसके और भी बेनिफिट होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको कॉन्स्टिपेशन रिलीफर भी बोला जाता है। दिस इज़ अ पपाया ट्री। पपाया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, एज वेल एज इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा इसकी लीव्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। डेंगू में इसके रस को प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरे सीजन, विंटर या समर, फ्लावरिंग देता है ये प्लांट। इसको सदाबहार एंड विनका भी बोलते हैं। पोर्टुलका सनलाइट में अपने फ्लावर्स को ब्लूम करता है और शाम को शेड कर देता है और इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावरिंग प्लांट तो है ही, इसके अलावा इसकी लीव्स हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको हेयर मास्क में यूज़ किया जाता है। रोज़ तो गार्डन का राजा होता है, इसको तो रखना ही चाहिए। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, अलग अलग कलर आते हैं, तो मस्ट बाय इट। गेंदे की माला के जो सूखे पत्ते होते हैं उनको मैश करके आसानी से उगाया जा सकता है। और ये जिनिया है, ये किसी भी नर्सरी में इजीली अवेलेबल होगा। फ्लावरिंग प्लांट इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज अगर अपन ने वेजिटेबल्स उगा रखी हैं तो उनको पॉलिनेट करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स का होना ज़रूरी है, ताकि बीज आएँ और इनको पॉलिनेट करें। ये है वाइल्ड ग्रास। जेड एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसको ज़्यादा वाटरिंग की नीड नहीं होती है। इसको इंडोर और आउटडोर दोनों रखा जा सकता है। एलोवेरा हैज़ काउंटलेस बेनिफिट्स, हेल्दी फॉर स्किन, हेल्दी फॉर हेयर, और इसका जूस भी ले सकते हैं हम। कोचिया इज़ अ डेकोरेटिव प्लांट। इसको बालकनी के डेकोर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है। स्नेक प्लांट इज़ अ ऑक्सीजन रिच प्लांट। ये 24 आवर ऑक्सीजन देता है और इसको सेंसेवेरिया भी बोलते हैं। कोलियस इज़ नोन फॉर इट्स लीव्स। इट हैज़ मैनी वेराइटी और हर वेराइटी में लीव्स का अलग शेड होता है। इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और शेडी एरिया में रखते हैं। क्रोटोन इज़ अ डेकोरेटिव प्लांट एंड रिच इन ऑक्सीजन। इट हैज़ 750+ वेराइटीज़। क्रिसमस ट्री इज़ अ डेकोरेटिव प्लांट्स एंड ये माना जाता है कि सेंटा क्लॉज इसमें गिफ्ट रख के जाता है, तो यू मस्ट हैव इट। Erica palm plant is also a decorative plant, can be kept indoor and outdoor as well. It doesn't need much watering. Winter season में पालक is very healthy for our body. और वुमेन्स को तो खाना ही चाहिए बिकॉज इट हैज़ आयरन। धनिया विंटर सीजन में इजीली ग्रो हो सकता है और इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। पुदीना इज़ वेरी नीडेड इन समर्स। इसको कटिंग से अप्रैल के मंथ में लगाया जाता है एंड इट हैज़ मल्टीपल यूजेस और ये बॉडी के लिए ठंडा भी होता है। बॉटल गार्ड, लॉकी, इसको मार्च टू जून कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक क्रीपिंग प्लांट है तो इसको थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है ग्रोव का एंड 2 मंथ बाद ये फ्रूटिंग देना शुरू हो जाता है। तोरई को भी लौकी की तरह ही उगाया जाता है। ये भी एक क्रीपिंग प्लांट है और इसको भी 2 मंथ लगते हैं फ्रूटिंग देने में। उससे पहले अगर इसके फ्लावर शेड हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब प्लांट है, इसको 2 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में। भिंडी को फरवरी के बाद कभी भी लगाया जा सकता है और इसको ज़्यादा केयरिंग की नीड नहीं होती, बस सुबह शाम वाटरिंग करो, ये इजीली ग्रो हो जाता है और फिर फ्रूटिंग भी देता है। ब्रिंजल, बैंगन,
बैंगन का पेड़ 100 डेज़ लेता है मैच्योर होने में। 100 डेज़ के बाद ये फ्रूटिंग देगा, तो इसमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड है और उससे पहले इसके फ्लावर्स में फ्रूटिंग नहीं आएगी, शेड ही होंगे। ये ग्लोई है जो मैंने कटिंग से लगाई है, ये इजीली ग्रो हो जाती है और इम्यूनिटी बूस्टर है, मस्ट हैव। इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट ज़मीन में भी। टमाटो का प्लांट भी एक बहुत अच्छा प्लांट है और इसको ज़्यादा केयरिंग की नीड नहीं है, बट इसमें रेगुलर खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर हफ्ते में एक बार इसको खाद ज़रूर दें। अजवाइन का प्लांट भी एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको हम सब्जियों में और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में भी यूज़ लेते हैं। इसके लिए उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेक श्योर आप अपने प्लांट्स को रेगुलरली सुबह शाम वाटरिंग करें और इनको ऐसे स्प्रे वाटरिंग बहुत अच्छी लगती है। अपने पॉट्स की सॉइल को और गार्डन की सॉइल को रेगुलरली टिलिंग ज़रूरी होती है, बिकॉज एक्सेसिव वाटर या कभी बारिश की वजह से इनके ऊपर एक ग्रीन फंगस की लेयर फॉर्म हो जाती है। कटिंग ऑफ डैमेज लीव्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि न्यू लीव्स जल्दी से जल्दी आए और प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करें। और हर्ब्स में कटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो डबल ग्रोथ दे। अगर पुदीने को अपन ऊपर से और धनिया को ऊपर से कट करते रहेंगे तो ज़्यादा ग्रो होगा। अगर हमको हमारे प्लांट्स को किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो हमको नीम ऑयल लेना है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होगा। 5 to 10 ड्रॉप्स हमें इसकी ढक्कन में ले लेनी है अंदाजे से और इसको 1 लीटर ऑफ वाटर में अच्छे से मिक्स कर देना है। और वंस इन अ वीक ये स्प्रे सारे प्लांट्स पे अच्छे से स्प्रे करना है। And in the end of this video, I would like to say कि ज़रूरी नहीं कि हम सबके पास होम गार्डनिंग का स्पेस हो, ज़रूरी नहीं कि हम सब किसी बड़े एनवायरनमेंट कैंपेन का हिस्सा हो, बट ज़रूरी ये है कि हम इंडिविजुअल एफर्ट करें। जैसे कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। So what all matters is our individual effort। चाहे वो किसी यूज मटेरियल को रीयूज करने की बात हो या हमारे आसपास एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की बात हो, we can surely make a difference। Every individual can make a difference. Every effort counts. But in case you willingly want to be a part of any NGO working for climate change, you can visit the links in description. And also, if you are wondering from where can you buy the saplings, I have found some contacts and I've given them in description. Must visit. And that's all for today. I hope you like this video. Please do not forget to show love. And yes, you can congratulate Priyanka in the comment section. She would be reading all the comments. Please show some love. Do not forget to subscribe to the channel, like the videos, share these videos, and show love. All the more power to us.